السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، ونشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسلیما۔ اما بعد، میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا فضل ہوا، کرم ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے اس جمعہ کے دن ہم سب کو مسجد میں آنے کی توفیق دی ہے۔ سب سے پہلے میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں، جو بات آپ کے سامنے کہنے کے لیے آیا ہوں وہ صحیح طریقے سے بولنے کی اور ہم سب کو سننے کی اور سمجھنے کی، پھر ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری جمعہ، پورا حج مکمل ہو گیا تھا۔ اب اس جمعہ واپس آنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا ہوا؟ آخری وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری حج کے بعد واپس آنے کے بعد مدینہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری وقت، انشاءاللہ آج اس بارے میں آپ کے سامنے میں بیان کروں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حج سے واپس آ گئے مدینہ منورہ۔ مدینہ آنے کے بعد ایک جنے کے جنازے کے واسطے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنت البقیع کو جاتے۔ جنت البقیع قبرستان کا نام، بقیع قبرستان کا نام، وہ قبرستان کو جاتے وہ جنازے کے واسطے۔ جا کو واپس آتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک ہی دم سر میں درد شروع ہوتا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سر درد۔ اب ویسا آ جاتے رہتے، آتے رہتے کو اب ادھر دیکھے تو موسم کیسا لگتے تو فل دھوپ ہے، فل دھوپ ہے۔ اب ادھر سورج گھٹو آتے رہتا، بہت گرمی۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم آتے ٹائم کو یہ سر درد کے ساتھ ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بخار چڑھ جاتا، تیز بخار آ جاتے گھر کو۔ امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گھر کو آ جاتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب وہ یہ سر درد کے وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں کیا کرتے تھے تو نبیوں کا طریقہ کہ تو سر درد آشتم کو نبیہ کیا کرتے تو سر کو کپڑا رکھ لے کو، کپڑے سے لپٹ کو ہے تو درد آتا کہ وہ گھاٹی گھٹو ڈالتے۔ اب یہ سائڈ کا آتا ہے کل لو، یہ سائڈ کو وہ گھاٹی سے گھٹو ڈالتے، یہ نبیوں کا طریقہ، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کرتے۔ ہے تو زیادہ درد آتا ہے کہ وہ سر کو کپڑا بند کو وہ گھاٹی ڈالتے، ہے تو درد آتا کہ۔ اب ایسا امی عائشہ کے گھر میں رہتے۔ اب یہ پورا تقریباً بیماری آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو 2 ہفتے رہا، 2 ہفتے پورا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بیماری میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تیز بخار، سر میں درد، پورا تقریباً 2 ہفتے ویسا آپ صلی اللہ علیہ وسلم گزارے۔ انہوں کتنے بیمار ہے تو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں نماز خود انہوں آکوچ پڑھے، خود مسجد میں آکو تشریف لا کر نماز خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی پڑھے۔ کتنا بیماری بھی ہو، کتنا سر میں درد بھی ہو، کتنا بخار چڑھا ہوا تو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کنفرم ہونے مسجد کو آکو نماز پڑھاتے سو آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گھر مسجد کے پاس ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گھر مسجد نبوی کے پاس ہی۔ اب ہم نا گھر گئے تو ایک کچن ہے، ایک بیڈ روم ہے، ایک ہال ہے، بالکنی، یہ پورے ہم نا، لیکن ہمارا نبی کا کیسا معلوم؟ پورا یہ کیچ کمرہ، اس میں کچن ہے، اس میں بیڈ روم ہے، اوچ بالکنی، اوچ سے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اوچ ہال بھی، پورا یہ کیچ کمرے میں رہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کتنا سادگی ہونے، کتنا نارمل ہونے انہوں زندگی گزارے۔ آج ہم نا بڑے بڑے بنگلہ ہے تو بھی ہم نا وہ برابر جاتے نہیں، بڑے بڑے بنگلہ ہے تو بھی، لیکن ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیچ کمرہ سب بھی اس میں پوری زندگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سادگی ہونے گزارے آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج اس امت کو کیا ہو گیا؟ گھر بنانا اللہ بھی منع نہیں کیا، اللہ منع نہیں کیا، لیکن اس میں
वो घर में पड़ जाको, वो जायदाद में, वो माल दौलत में पड़ जाको, अल्लाह को भूल जाना ना को, वो बोल के बोले अल्लाह। वैसा कर ले तो उस्मान रजी अल्लाह तआला अन्हु, उस्मान गनी रजी अल्लाह तआला अन्हु कितने मालदार सहाबी जी, उनका काफला आता है कि तो जमीन भी हिल जाता सो, उतना भारी भारी भरकम का खजाने आते सो उना कहने को। फिर उन अल्लाह को भूले, आप उन्होंने को बोले नहीं तू कहीं को इतने खजाने कमाता है, नको इतना माल दौलत के पीछे ढूंढना नको, बोल के बोले नहीं, कहीं को उन्होंने अल्लाह के रास्ते में है, अल्लाह को छोड़े नहीं, उन्होंने अल्लाह की इबादत में रहे, अल्लाह की शुक्रिया अदा करते रहे, अल्लाह की नाशुक्री करे नहीं। और अल्लाह क्या बोला है, कौन है तो मेरे नेमतों पर शुक्र अदा करता कि मैं उसके नेमतों में इजाफा कर डालता हूँ, अभी बढ़ा डालता हूँ उसके नेमता, मेरे नाशुक्री नहीं करना है उन्हें, तो बोल के बोले अल्लाह। अभी पोच करे उन्होंने। अब ऐसा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कमरा एक कीचे जी सारी जिंदगी उसमें गुजारे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आखिरी हफ्ता, अभी एक वारम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अभी आखिरी हफ्ता उनकी जिंदगी में, एक दिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूछते क्या को उनके बीविया को बुला को पूछते, सबक किसकी बारी, परसुन किसकी बारी, तरसुन किसकी बारी। अब ये बारी के बारे में मालूम होना कहते तुम ना, इस्लाम हम ना इस उम्मत को 4 शादियों की इजाजत दिया। अब ये 4 शादियों की इजाजत देते टाइम को अल्लाह कुरान में क्या बोला कहते हो, कब है तो तुम्हें सबके हुकूक अदा करते कि जब भी तुम्हें 2 शादियां कर लो या 3 कर लो या 4 कर लो, अदल नहीं कर सके तो, इंसाफ नहीं कर सके तो एक शादी को पूरी छोड़ो बोल को बोले अल्लाह। वहां हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 9 प्रेजेंट जिंदा है, उस टाइम को 9 बीवियां जिंदा है वो टाइम को हमारे नबी के। अब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मालूम सबक किसकी बारी करेगा, सबक किसका नहीं जाना, किसका घर की बारी सबक करेगा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खुद मालूम, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूछते रहते सबक किसकी को इसकी वाक्य बीवियां पूरे समझते क्या लोग। अबे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बीमार है ना, अबे बीमारी में आयशा का नहीं रहना को बोल के समझते हैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अच्छा हमें उनको इजाजत देंगे बोल के सारे बीवियां मिलकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बोलते या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम्हारी मर्जी, हमें तुम ना परमिशन देते हैं, इजाजत देते हैं, तुम ना तुम्हें तुम्हारी बीमारी हुए तक कि तुम्हें आयशा का नहीं रहो, कभी तो अल्लाह तुम शिफा देता कि जब फिर को वापस आको हमारी बारियां तुम्हें शुरू करवा लो, हमें इजाजत देते हैं, तुम ना परमिशन देते हैं वो बोल। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सारे बीवियों की शुक्रिया अदा करते। अब इससे क्या मालूम होता, इस्लाम हम ना 2 शादी 3 शादी 4 शादियों की इजाजत दिया तो वह अदल इंसाफ करने का हुक्म देता। इंसाफ नहीं करे तो एक को रखना भी बेकार है, उसकी इंसाफ नहीं कर सके तो एक है तो भी। अभी आखिरी खुतबा में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या बोले, तुम्हें क्या है तो खुद खाते कि वो लगा तुम्हारी बीवी को खुद देना, खुद खा लाओ, तुम्हें क्या है तो पहनते कि तुम्हारी बीवी को भी खुद वही पहनाओ, उसे अच्छा देख लो, वो बोले ना आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब वो क्या सारे नबियों के सरदार, दोनों जहानों के सरदार होकर भी हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इजाजत मांगते हैं परमिशन के वास्ते, मेरे बीविया मुझे परमिशन दिए मैं यार रहना आगो बोल को, नहीं तो अल्लाह पकड़ता नीजिएगा बोल को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम डरते हैं जब बीविया इजाजत देते। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनका आखिरी वक्त पूरा अम्मी आयशा रजी अल्लाह तआला अन्हा के पास रहते आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब इंतकाल सी एक 5 रोज पहले, इंतकाल सी अभी 5 रोज पहले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बदन में बुखार तेज होने चढ़ जाता, बहुत तेज होने चढ़ता आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बुखार 5 रोज से पहले। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो बुखार तेज होने चढ़ने की वजह से बेहोश हो जाते रहते, बेहोश होते रहते, फिर होश में आते, फिर होश में आने के बाद सहाबा को बुला को बोलते, सहाबा को ये मेरे सहाबा 7 कुओं के पानी लेकर आओ, मैं गुस्ल करने के वास्ते को बोलते, मैं गुस्ल कर को, मैं पानी नहा को मेरे सहाबा से जाकर बात करना को बोल को बोलते। 7 कुएं के तो क्या हो बावड़िया, 7 बावड़िया का पानी लेकर आओ मेरे कने को, मैं पानी नहा को मेरे सहाबा से जाकर मैं बात करना को बोल को। वैसा चे सहाबा 7 कुएं का पानी लेकर आते, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पानी नहा को वही तेज बुखार में, बुखार है पानी डाले तो जर्रा ठंडा होता वो बोल जर्रा ठंडा कर लेते, सिर दर्द कम नहीं होता आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, फिर को सिर को कपड़ा बन को रहते टाइट होने का है तो ज्यादा दर्द आता है कि वह घाटी डाल डालते। अब वैसा वो हालत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हम मेरे सहाबा से बात करना मैं को बोल दो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जाते।
काकू मस्जिद नबी में दाखिल होते, मस्जिद नबी में दाखिल होते आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जाको मस्जिद नबी में सबसे पहले मिंबर को बैठ जाते, मिंबर इसे मिंबर बोलते, ये मिंबर को बैठ जाको आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे पहले एक बात बोलते, अल्लाह लानत करे यहूद व नसारा के ऊपर जिन्होंने अपने नबियों के कब्रों को इबादतगाह बना लिया। तो क्या यहूदा नसराना ये लगा क्या कर लेगे, तो वो लगा कि नबिया के कब्र को इबादतगाह बना लिए, वो लगा इबादत का जगह के नाथ बना ले, वो लगा के ऊपर अल्लाह की लानत हो को बोल को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोले, मेरी इस दुनिया से जाने के बाद कौन भी हिम्मत मत करना, मेरी कब्र को इबादतगाह बनाने की हिम्मत कौन भी मत करोगे बोल को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वार्निंग देते हैं सहाबा को मस्जिद नबी में। एक बारिश से ज्यादा, एक बारिश से ज्यादा भी मेरे कब्र को ढकना न को, सादगी होने मुझे छोड़ डालो को बोल को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सहाबा को तरगीब दिए, तुम्हें ऐसा करना न को, नहीं करते तो यहूदिया कैसा है तो ये कर सकते, यहूदिया के ऊपर कैसा है तो लान तान होता है कि तुम्हारे ऊपर भी वो लान तान होता को बोल को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोलते। अब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में अपने सहाबा से बोलते क्या को मैं किसे तो तकलीफ देते है तो आको आज ही 26 मेरे कने का को मेरे से बदला लो, कल कयामत में मेरे खिलाफ कौन भी खन्ना न को मैं बर्दाश्त कर सकता हूं, नहीं को बोलते, क्या कर सकते नहीं, बर्दाश्त संभाल सकते नहीं। कौन? पूरे नबियों के सरदार, दोनों जहानों के सरदार, जिनके वजह से अल्लाह ताला दुनिया पैदा किया, वो ये बात कह रहे हैं, सबसे ज्यादा महबूब पैगंबर, उन्होंने ये बात कहते हैं क्या को कयामत में मैं बर्दाश्त कर सकता नहीं को, जिनके वजह से जहन्नम में जाने वाले लोग भी जिनकी सिफारिश की वजह से जन्नत में जाते, वो इंसान, वो नबी कहते हैं मैं कयामत में बर्दाश्त नहीं कर सकता हूं, मेरा तुम्हारा हाल क्या होता फिर? उतने बड़े नबी का जो हालत है तो कल कयामत में मेरा तुम्हारा हाल क्या होता? नबियों में सबसे अफजल शिब्बे मेराज के टेम्पो क्या करे अल्लाह, पूरे नबियों को पीछे कराया मुक्तदियों के नाथ, सामने इमाम के नाथ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खड़ा कर नमाज पढ़ाने घुमाया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फजीलत बताने का, उनके मकाम बताने के वास्ते उन्होंने आज वो बात बोलते हैं, फिर हमारा क्या हाल होता बोलो भाई, हमारा क्या हाल होता कल कयामत में? कौन भी क्या भी बात करते नहीं, मैं किसका तो हक मार को है तो बोलो, किसे क्या तो देना है तो बोलो, अब भी शेखो बोलते, कौन भी बात करते नहीं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिंबर से उतर को नमाज पढ़ाते, नमाज हो जाने के बाद फिर मिंबर को चढ़ते, फिर बोलते ये लोगों मैं किसी तो क्या तो तकलीफ देता है तो आप मेरे से अब बीच बदला ले रहे तुम्हें, मैं अब बीच बोलता हूं, कयामत में मेरे खिलाफ तुम लगा कौन भी खन्ना न को, मैं तुम्हारा क्या तो हक मार को है तो अब बीच बोलो मेरे सी को बोलते। जब एक सहाबी हुड को या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे तुम्हें 3 दिरहम देना को बोलते, 3 दिरहम मुझे देना तुम्हें को बोलते, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोलते कि देना है कर लेता हूं, मुझे जरा याद नहीं है, मुझे जरा याद दिलाओ को बोल के बोलते। जब वो सहाबी याद दिलाते, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फलाना टाइम को फलाना शख्स तुम्हारे पास आया, जब तुमने पूछा, तुम्हें मुझे पूछे तेरे कने है क्या, दे मुझे बाद में देता हूं को वही को बोले, जब मैं 3 दिरहम निकाल को दिया मैं तो वही को बोलते। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोलते हाँ मुझे याद आ गया तो बोल को फजल इब्ने अब्बास, अबे ये बीमारी के टेम्पो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चल सकते नहीं, जब क्या करते थे तो एक तरफ है हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु, एक तरफ है फजल इब्ने अब्बास रजी अल्लाह तआला अन्हु, दोनों के खाने के ऊपर सब हाथा रख के चलते, उसमें अबे फजल इब्ने अब्बास रजी अल्लाह तआला अन्हु को बोलते, ए फजल मेरे भाई, कजिन होते उन्होंने, ये मेरे भाई फजल तुम एक कर्ज अदा करोगे क्या उसको, मेरा हक तुम उसको अदा करोगे क्या तो बोल के पूछ। फजल इब्ने अब्बास रजी अल्लाह तआला अन्हु बोलते या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसका जिम्मेदार मैं हूं, मैं जिम्मे लेता हूं, मैं उसको अदा कर डालूंगा तो बोलते। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोलते उन्हें अदा करते को बोल को बोलते हैं ना तुम्हें वो 3 दिरहम में तुम ना देना है सो तुम्हें वो ना करने ले लो को बोल को बोलते। अब नबी बोलते कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मजीद और एक बात बोलते कि बेशक अल्लाह के बंदों में से
इसका एक बंदा अल्लाह ने उसे इख्तियार दी है कि इसी दुनिया में रहे और इस दुनिया की पूरी नेमतें खूबसूरती अता कर दे, या अल्लाह के पास जाकर ले ले जो अल्लाह ने उसके पास रखा है। तो बंदा ने अल्लाह के पास जाकर लेने का फैसला किया। समझ में आया? अल्लाह उसके बंदों में से एक बंदे को कहते ऑप्शन सा दिया। पहले ऑप्शन है इस दुनिया की पूरी नेमतें खूबसूरत है उसे दे डालना। दूसरा ऑप्शन है अल्लाह कने जाको खुद जाको अल्लाह कने क्या है कि वो लेना। अब वो बंदा क्या लेना कहते तो अल्लाह के पास जाको अल्लाह कने क्या है कि वो लेना को बोल को लेला को बोल को ऑप्शन लेने को बोल को बोलते हैं। कौन है? हमारे नबी बोलते हैं ये बात। ये बात सुनने के बाद हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु रो डालते। सहाबा को समझ में नहीं आता, तुम्हें कहीं को जाते अबू बकर को, ए अबू बकर तुम क्यों रोते हो, क्या हुआ इसमें? आपसे मिसाल के तौर पर बोलते हैं तुम्हें कहीं को रोते हैं बोल तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये मामूली सी बंदे के बारे में बोलना नहीं है बात है। खुद उन्होंने अपने बारे में अपनी उम्मत को बताते हैं मैं अभी अनकरीब मैं अल्लाह के पास चले जाते हैं। तो वो हमारी उम्मत को ये बताते हैं, हम ना लगा कोई ऐसा उनका अंदाज अलग बताने का अंदाज डायरेक्ट बोले नहीं सरकार उन्होंने ऐसा समझाते हैं हम ना लगा को। तो वो अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु बोलते, जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोलते कि ये बात कब है तो अबू बकर बोलते कि ये बात बोले बसता आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोलते कि सहाबा सज्जना को मैं अबू बकर सी मैं बहुत खुश हूं उन अल्लाह के रास्ते में अल्लाह की दीन में उनका माल बहुत ज्यादा कुर्बान कर दिया, उनकी जान माल पूरा उन्हें लुटा दिए, उनका जान माल है। अगर अल्लाह मुझे इख्तियार दिया तो मैं किसे तो खलील बनाना को बोल को समझो तो अबू बकर सिद्दीक को मैं खलील बनाता हूं को बोल को बोले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इससे हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु का मकाम मालूम होता है। हमने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में उन्हें कितना समझदार की देखो, वह उन्हें बोलते हैं कि नहीं कि साहबा पूरे मामूल समझे, लेकिन अबू बकर सिद्दीक को मालूम हुआ ये उनके बारे में बोलते हैं उन्हें को कभी तो ऐसा बोलते कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फौरन साहबा को बोले मैं अबू बकर से बहुत खुश हूं। ठीक हो उनकी समझदारी, उन्हें उम्र में ज्यादा उनकी उम्र ज्यादा थी बाकी साहबों से भी समझदार ज्यादा उसकी वजह से आपसे वसल्लम बोलते हैं मुझे अल्लाह इख्तियार दिया तो मैं उसे खलील बनाता हूं बोल को बोलते हैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब इंतकाल के 4 रोज पहले सहाबा को बुलाते आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सहाबा को बुला को अस्सला अस्सला है तो ये मेरी उम्मत नमाज मत छोड़ना, नमाज पढ़ो तो बोल को बोलते हैं। अब ये बोलने के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में कैसी हालत में भी तुम्हें नमाज छोड़े जानी को बोल को बोलने के बाद मैं तुम्हारे पास 2 चीज छोड़कर जाता हूं। आखिरी खुतबे में बोले 2 चीज को अब भी रोज बोलते हैं मैं तुम्हारे पास 2 चीज छोड़कर जाता हूं, वो 2 चीजों को तुम्हें मजबूती से पकड़ ले तो तुम्हें कभी गुमराह नहीं होते वो बोलते। वो 2 क्या जी कहते तो सबसे पहले किताबुल्लाह अल्लाह की किताब कुरान सबसे पहले, दूसरी मेरी सुन्नत छोड़कर जाता हूं। ये 2 को तुम्हें मजबूती से पकड़ने के कहते तो तुम्हें कभी गुमराह नहीं होते को बोल को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हम बोलते हैं। अब ईशा का वक्त हो गया, ऐसा ईशा का टाइम हो गया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वास्ते मस्जिद में सहाबा इंतजार में है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वास्ते। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अभी आए नहीं, कहीं को आए नहीं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम करते तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेहोश हो जाते रहते, बेहोश होते फिर उड़ते होश में आते। अम्मी आयशा रजी अल्लाह तआला अन्हा से पूछते क्या ये लोग ईशा की नमाज पढ़ लिए? अम्मी आयशा फरमाती है नहीं या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपके इंतजार में है वो लोग। ठीक है, फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिर से बेहोश हो जाते,
फिर से होश आता, फिर से वही सवाल करते, क्या ये लोग इशा की नमाज पढ़ चुके हैं? अम्मी आयशा फिर से वही बोलते, नहीं या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपकी इंतजार में है वो लोग। वो बोलते, जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोलते, जाके अबू बकर से कहो नमाज पढ़ाए। ये अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की पहली नमाज। वैसा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मौजूदगी में 17 नमाजें पढ़े अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। हमारे नबी जिंदे है तक पूरे 17 नमाजें अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु खुद पढ़ाए। एक रिवायत में ऐसा आता है, दूसरे रिवायतों में क्या आता है तो कौन है तो क्या नमाज पढ़ाने, सामने उमर है ना, वो बोल को सहाबा उमर रज़ी अल्लाह अन्हु को सामने करते। जब जोर से पीछे से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोलते, उमर को हटाओ, मेरे मुसल्ले पे अबू बकर के सिवा कोई भी खड़ा नहीं हो सकता, ये अल्लाह का पैगाम है, ये अल्लाह का हुक्म है, मेरे मुसल्ले पे, वहां पे मेरे मुसल्ले पे अबू बकर के सिवा कोई भी खड़ा नहीं हो सकता, वो बोल को बोलते आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये दो रिवायत है, ये उनका मकाम, अबू बकर सिद्दीक का मकाम कितना ऊंचा को बोल को बताने के वास्ते हदीसा। उन्होंने कितने समझदार आदमी, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्हों को कितना मोहब्बत करते सो, इन्हों कितना मोहब्बत करते सो कहने का बताने के वास्ते, उनका मकाम बताने के वास्ते ये पूरा वैसे आप पूरा 17 नमाजा पढ़ाते उन्होंने। अब इंतकाल सी एक 3 रोज पहले एक सहाबी नबी के पास आको बोलते, या रसूल अल्लाह बीमारी में है, तुम ना दर्द कैसा है, दर्द ज्यादा होता है क्या? वो बोलते। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोलते कि तुम्हें इस हालत में अल्लाह तुमने अगर रखा तो इस हालत में तुम्हें सब्र से काम लो, जबान से नाशुक्री मत करो, अल्लाह की शुक्र अदा करो, ऐसा मत बोलो मुझे अल्लाह को मैच मिलूं क्या मुझे चेते रोगा देना, अब कुछ मैं इतने टेंशन में मरता हूँ, बिल्कुल मुझे अल्लाह मुझे देना क्या मैच मिलूं क्या अल्लाह को, ऐसा के नाशुक्री अल्फाजा बोलो न को बोल को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबी को बोलते कि तुम्हें सब्र से काम लिए तो तुम्हारा फायदा क्या होता सकते, तो अब इस सुज्जा को एक झाड़ रहता जी, पत्ते सुज्जा को झाड़ सुज्जा को रहता, अब हव्य को तो नहीं, वो झाड़ को हलाए तो सुज्जा से पत्ते कैसा झड़ जाते रहते, वैसा तुम्हारे गुनाह झड़ जाते रहते, तुम्हें सब्र से रहे तो अल्लाह का नाशुक्री ना करे तो वैसा के हालत में को बोल को सहाबे से बोलते आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अबे सूखे झाड़ सी हलाए तो हवाए तो क्या कितने झड़ जाते रहते जी, चुपके झड़ जाते रहते नहीं पत्ते, वैसा हमारे गुनाह माफ हो जाते रहते वो बोल को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो सहाबे से बोलते हैं, वैसा वो बोल को। अबे 2 दिन पहले अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु नमाज पढ़ाते रहते, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तबीयत जर्रा बेहतर का वाको आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद में आते, कभी तो आते हैं को बोल के ना मालूम होता कि अबू बकर को मुसल्ले से यहाँ से पीछे हट जाते, पीछे का जाते रहते। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सामने खड़ को नमाज पढ़ाते, पीछे अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हमारे नबी सामने तकबीर बोलते हैं तो इन्हों भी पीछे से जोर से तकबीर बोलते, कई को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बीमार होने की वजह से घट्टू बोल सकना नहीं, ना आवाज घट्टू आना नहीं, आवाज बीमारी की वजह से उसका से सबको सुने जाना ना, पीछे से सहाबा पूरे को उसका से फिर कोई दोबारा रिपीट करते रहते अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, वैसा नमाज पूरी वैसा रिपीट करते रहते अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। अब एक दिन पहले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास ऐसो गुलामा पूरा को गुलामा को आजाद कर डालते आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इस्लाम में तुम्हारे हमारे गुनाह माफ होना है तो हमारे पास गुलाम है तो उसे हमें आजाद कर डाले कर लो, हमारी गुनाह चुपके जल्दी माफ हो जाता, अल्लाह करे माफी कबूल हो जाती हमारी माफी, वैसा हमें कितने गुलामा को छोड़ डालते कि उतने माफिया हमारे हो जाते रहते इस्लाम में। वैसा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन्हें करेंगे ऐसे गुलामा सबको बुला को सबको आजाद कर डालते आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास 6 या 7 सुन्ने के कॉइन्स रहते, वो पूरे सदका कर डालते आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कने जिराह रहता, जिराह कहे तो कवचम जंग में रहता सो कवच, वो किसे देते कहते, ये यहूदी को देते, ये यहूदी को कई को देते कहते तो ये उसके पास जमानत के तौर पर देते, गिरवी बोलते नहीं गिरवी। अब क्या तो चीज तुम्हारे कहने से क्या तो पैसे ले ले को मैं
फलाना चीज तुम्हारे कन रखो, मैं बाद में आपको लेके जाऊंगा भाई, तुम्हारे कन वो चीज रखो जब तक मेरा होगा। वैसा वैसा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का घर को एक बार मेहमान आते, गेस्ट आते, गेस्ट खाना नहीं रहता, वो यहूदी का नहीं जाकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में खाना ले लेते, उसके वजह से ये बदला में कवच देते उसे, वो यहूदी को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बाकी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नहीं है, अभी उनके तलवार रहते ना, वो तलवार पूरा सहाबा में तकसीम कर डालते, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तोहफा के नाम दे डालते, गिफ्ट के तौर पर पूरे तलवार दे डालते सहाबा को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आखिरी दिन फजर का वक्त हुआ, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु या खड़ को फजर की नमाज पढ़ाते हैं मुसल्ले पे। उधर पीर का रोज 12 रबीउल अव्वल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर्दा हटाते, अपने कमरे से पर्दा हटा को सहाबा को देखते, सहाबा को देखो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत खुश होते। ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आखिरी दीदार, अपने सहाबा को देखना, हम कैसे ये आखिरी बार देखना अपने सहाबा को देखना, ये आखिरी दिन ना, आखिरी बार अपने सहाबा का भी देखने का खुश होते आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कल क्यों गए तो इससे पहले लगा पूरे बुद्धा का पूजा करते सो, आज अब मुसल्ले पे खड़ को नमाजा पढ़ते हैं, ये लगा कि ईमान को देखो बहुत खुश होते आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये लगा एक अल्लाह का इबादत करते हैं को बोल को, शिर्क को छोड़ वाले को बोल को। कब है तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हटाते कि पर्दा, पूरे सहाबा नमाज में थे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखने लग जाते, चढ़ को फिर को वो लगा भूल जाते, हमें नमाज पढ़ते हैं करने के बाद भी भूल जाते सहाबा। अब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में आते क्या की को बोल को अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु फिर को पीछे आते रहते, जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इशारा करते तुम मैच पढ़ाओ, तुम मैच अखड़ो को बोल के ऐसे इशारा करो उन्हें कुछ पढ़ाओ को बोलते। अब ये लगा नमाज डिस्टर्ब हो जाती है वो बोल को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर्दा डालते हैं। वैसा ये आखिरी बार आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी उम्मत को नमाज में वैसा देखना, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उन्हें पढ़ाओ को बोल को बोलते, वैसा वो नमाज अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु मुकम्मल करते। इसके बाद फजर के बाद इशराक का टाइम होता, इशराक के बाद सारे बीवियों को बुलाते आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अपने बीवियों को बुलाकर सबको रुखसत कर डालते, सबको। बाद में हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा बेटी को बुलाते, नज्जी करते, नज्जी कर को कान में बोलते, दो बातें बोलते, एक बात को उन्हें रोते फातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा, दूसरी बात को खुश होते। वो दो बातें क्या हो गए तो पहली बात आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोलते सो बेटी मैं अब इस दुनिया से जा रहा हूं, वो बोलते। ये सुनने के बाद फातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा संभाल नहीं सकती, उन्होंने अपने बाप को वो बात बोलते स्टम्बो, उन्होंने रो डालते। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोलते बेटी तू रो मत, सबसे पहले तेरी मेरी मुलाकात होती, वो बोल को बोलते। हदीस में आता है 25 उम्र में, 25 साल की उम्र में या 26 साल की उम्र में सबसे पहले कौन किसका मुलाकात हुई गई तो फातिमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा का सबसे पहले मुलाकात आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फिर उनको भी रुखसत कर डालते। दामाद अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को बुलाते, गोद में उन्हें का सर रखते, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गोद में अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का सर रखते, ऐसा सिर कने से कंबर तक कैसा हाथ ऐसा फेराते रहते, उन्हें सिर ऊपर से कंबर तक कैसा फेराते दुआ देते रहते, हजरत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को दुआ देते हुए ऐसा फिराते रहते, उन्हें को रुखसत कर डालते। अब जिगर के टुकड़े हजरत हसन और हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा को बुलाते, आओ को ये बीविया को, बेटी को, दामाद को रुखसत करते स्टम्पो, क्या भी रोना नहीं, क्या भी नहीं, रुखसत कर डाले। कब है तो अपने जिगर के टुकड़े अपने दो नवासे आते की उन्हें को लपट लेते कलीजे को, तब है तो लपट लेते को लगा को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बर्दाश्त नहीं कर सकते, एक एकदम रोना शुरू कर डालते आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ठीक हो गए तो अल्लाह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पहले बताया, इसमें एक बच्चा जहर में तड़पता होता, दूसरा का सर कटा को नेज़े के ऊपर चढ़ाते, ये उम्मती से काम करने का वो बोल को पहले तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह बताता।
वो देख को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रोना आ जाते रहता। फिर बिलाकिर वो लगा को भी रुखसत करवा दी। अब वो लगा रुखसत करवाने के बाद सबको रुखसत करवा ले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अम्मी आयशा रजी अल्लाह तआला अन्हा उन्हें से बोलते, ये आयशा, मुझे खैबर में एक औरत जहर देना, वो जहर का असर आपको भी लगता है, आपको भी मुझे वो दर्द महसूस होता है। जब खैबर में कपकी दी से वो जहर है, मैं वो जहर खाया नहीं, जर्रा मेरे जबान तक चले गया, वो जर्रा गया सुसकुचे, अब तक भी मुझे वो महसूस होता है, वो दर्द मुझे अंदर हबी है। वो बोल को अम्मी आयशा रजी अल्लाह तआला अन्हा से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो बोलते हैं। अब वो बोलने के बाद फिर को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरे सहाबा को बुलाते, बुला को अस्सला अस्सला, ये मेरी उम्मत, नमाज मत छोड़ना, नमाज मत छोड़ना, चाहे कुछ भी हो जाए नमाज मत छोड़ना, नमाज अपने वक्त पे कायम करना। वो बोलकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोलते। दूसरी बात, तुम्हारे गुलामों के साथ, तुम्हारे मातहतों के साथ, मुलाजिमों के साथ, तुम्हारे नीचे काम करते सो वर्करा के साथ, गुलामों के साथ अच्छे सुलूक करना। अगर तुम्हें ऐसा नहीं करे तो अल्लाह का ने तुम्हारा पकड़ होता, जब तुम ना कौन भी बचा सकता नहीं। ये लगा कि तुम्हारे नीचे दिया अल्लाह, तुम्हें लगा को अच्छा दे देना, तुम्हें क्या खाते कि ये लगा को खुद वही खिलाओ, तुम्हें क्या पहनते कि खुद वही ये लगा को पहनाओ। कबूल को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में अपने सहाबा पूरे को ये बोलते रहते। अब ये बोलने के बाद वो लगा भी रुखसत कर डाल को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत अम्मी आयशा रजी अल्लाह तआला अन्हा के कमरे में रहते। अब इससे पहले बीवियां परमिशन दिए ना, इजाजत दिए ना, तुम्हारी राजी, तुम्हें आयशा के घर में रहो, बीमारी शिफा हुई तक को। अगर हमें बारी डालने को आए तो भी हमारे नबी का आखिरी दिन में अम्मी आयशा के घर में रहना। अगर बीवियां इजाजत नहीं दिए तो भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बारियां पूरे करने का आए तो भी हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आखिरी दिन को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अम्मी आयशा के घर में रहना। अम्मी आयशा की बारी चाहती है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कैसा है तो भी। अब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में ये बोलने के बाद अम्मी आयशा रजी अल्लाह तआला अन्हा के भाई अब्दुल रहमान इब्ने अबू बकर रजी अल्लाह तआला अन्हु उन्होंने आते, उनके हाथ में मिसवाक रहता। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिसवाक की तरफ देखते रहते। जब अम्मी आयशा रजी अल्लाह तआला अन्हा समझते कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूछते, या रसूल अल्लाह, तुम्हें मिसवाक की तरफ ही ज्यादा देखते हैं, तुम्हें मिसवाक करते क्या लगता है? तो हो को बोल, जब वो मिसवाक लेने को चाप सकते नहीं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीमारी ज्यादा हो गई ना, वो पहले अम्मी आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा अपने मुंह में रखो चाप को, बाद में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मिसवाक कराते हो। मिसवाक करो तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी तो मिसवाक हो जाता कि खोटरे में पानी रखो रहता। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोलते हो खोटरे में का पानी लेकर आओ, खोटरा लेकर आओ, पानी खाओ। जब हाथ मुंह धो लेते आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब ऐसा अम्मी आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मिसवाक कराते। इससे मिसवाक की फजीलत मालूम होती है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी वक्त में भी मिसवाक की बहुत अहम करते थे, उसको मिसवाक ज्यादा बरतते थे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आखिरी टाइम पे भी अब्दुल रहमान रजी अल्लाह तआला अन्हु इस टाइम को नजरा उसको प्रीत जाते रहे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। अब इसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक बात बोलती, ला इलाहा इल्लल्लाहु लिल मौती लसकरात। इसकी मानी क्या होगा? तो अल्लाह की सिवा कोई इबादत के लायक नहीं, दर हकीकत मौत की अपनी अजियतें है। अजियतें के तो मौत की बहुत बड़ी तकलीफ है वो बोल को, ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोलते हैं। अपनी बारे में बोलना नहीं, नबियों को कुछ भी तकलीफ नहीं होता, नबियों को कुछ भी तकलीफ नहीं होता। वो लगा कुछ जान जाते इस टाइम को क्या भी तकलीफ नहीं होता नबियों को। ये आम इंसानों के बारे में बोलते हैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मौत के टाइम पे बहुत तकलीफ होती है। ये बारे में क्या हो गए तो ईसा अलैहिस्सलाम मुर्दे को जिंदा करके सोना, हजरत मरियम अलैहिस्सलाम में इंतकाल हो जाते, उनकी माँ ईसा अलैहिस्सलाम की माँ, उन्हें इंतकाल हो गए तो कुम भी इज़्निल्लाह को बोलते, अल्लाह के हुक्म से तुम्हें उठ जाओ, वो बोले तो उठ जाते सो, मुर्दा को जिंदा करते सो। ऐसा वैसा अपनी अम्मा को जिंदा करवाते, जिंदा होते उन्हें से पूछते ईसा अलैहिस्सलाम मौत के बारे में क्या तो बोलो तुम्हें को बोल को, मौत देखा है ना तुम्हें, मौत देखो है ना तुम्हें, बोला क्या तो मौत के बारे में हो। जब मरियम अलैहिस्सलाम बोलते कि मौत के बारे में क्या बोलना, मैं या इंसान कितनी तकलीफा पड़ा तो भी मौत की तकलीफ मानने बहुत ज्यादा है, वो तकलीफ असल संभाल सकते नहीं कौन भी, वो बोल को मरियम अलैहिस्सलाम बोलते। ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिर में बोलते हैं मौत का बहुत बड़ा तकलीफ है वो बोल को, ये उन्हा के बारे में नहीं,
हमारे बारे में बोलते। अब इसके बाद जिब्राइल अलैहिस्सलाम में मौत का फरिश्ता आ जाता। जिब्राइल अलैहिस्सलाम अंदर आते, अंदर आको बोलते या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाहर मौत का फरिश्ता खड़को है, अंदर आने की परमिशन इजाजत चाहता है को बोलते। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोलते आओ का ना, मैं कब्रों को मैं रुकायम नहीं, तो वो बोलते। जब मौत का फरिश्ता अंदर आते ही सलाम करता, अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं पहली बार सलाम करता हूं, मैं अब तक किसी को भी सलाम नहीं करा। मैं जितने बहुत सारे नेकों का रूह निकाला, जाना निकाला, नबियों का जान निकाला, रसूलों का जाना निकाला, लेकिन कभी भी मैं किसी को सलाम नहीं करा। आप पहली हस्ती है मैं जिनको सलाम करता हूं, और आप पहली हस्ती और आप ही आखिरी हस्ती भी हो। अल्लाह मुझे बोला इजाजत ले तो घर में अंदर दाखिल होना, परमिशन ले नहीं सरका, इजाजत नहीं सरका तो अंदर गई जानी को बोलकर अल्लाह मुझे बोला आप पहली हस्ती, अब तक किसी भी ऑप्शन अल्लाह दिया नहीं। और दूसरी बात आपको अल्लाह ये इजाजत दिया, अल्लाह तुमने आपको ऑप्शंस दिया, क्या वो अगर आप रहना चाहे तो दुनिया में ही छोड़ कर आ जाना, अगर आप आना चाहे तो लेके आना। ये अब तक किसी को भी नहीं दिया ऑप्शन है, ऑप्शन कितने बड़े रसूलों को भी नबियों को भी किसी भी नहीं दिया। ये तुम्हें पहले तुम्हें आखिर को बोलती। अब वो बोलने के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आंखों के ये है ना, इससे इशारा करते जिब्राइल अलैहिस्सलाम से, ऐसा तुम क्या कहते हो, तुम क्या कहते हो। जिब्राइल अलैहिस्सलाम बोलते या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह ताला आपकी मुलाकात की शौक में है, तुम आते हैं को बोल को तुम्हारा इस्तेकबाल के वास्ते, इस्तेकबाल के तो वेलकम, तुम्हारा वेलकम के वास्ते, इस्तेकबाल के वास्ते सातों आसमान सजाए गए, डेकोरेशन कर को है, डेकोरेट करवा को है, तुम्हें आते हैं को बोल को, तुम्हारी मर्जी, अबे आना नहीं आना हो। अबे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फैसला बोलते सो सामने। अब हमें क्या तो मरते हैं तो कब भी हमारा मौत का वक्त आया तो हमें उस वक्त क्या सोचते, मेरे बीवी, मेरे बच्चे, मेरे घर वालों का क्या हाल होता हो। नहीं, हर एक जना भी उसको मौत के टाइम उसके घर वाले को, उसकी बीवी, उसके शौहर को, उसके बच्चा को सोचने का कौन है तो भी। या हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने लाडले नवासे के बारे में मालूम क्या होता कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूछे तो वो रुक जाता, ये दोनों को होना है से रुक जाता, जहर में तड़पना नहीं होता, सर कटा को नेजे के ऊपर चढ़ना नहीं होता, उन्हें दुआ करे तो पूछे तो। लेकिन वो लगा कि वहां से पूछते नहीं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे जैसे नालायक, मेरे जैसे गुनहगार, मेरे जैसे बदबख्त के लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोलते मेरा हसन का क्या होता वो बोल को बोलते नहीं, मेरा हुसैन का क्या होता, मेरा लाडले नवासे, ये दोनों मेरे, ये लगा का क्या होता कहते नहीं। हम जैसे नालायक, हम जैसे गुनहगार, हम जैसे बदबख्तों के लिए सवाल उठाते, जाओ अल्लाह से पूछ कर आओ मेरी बात, मेरे उम्मत के बारे में अल्लाह क्या करेगा, ये बोलने के बाद मैं जब जवाब दूंगा। अगर मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये सवाल नहीं करते, आज मैं, तुम, हम सब बंदर, खिंजीर, सुअर बंदे सो, हमें सोप भी है बंदे से। पिछले कौमों में अल्लाह बोला हफ्ते को मछली खाना नको तुम्हें लगाओ को, वो लगा सुने नहीं सर का मच्छी खाते, सारे कौमों को उचारा होती, को बंदरा बना रहा होता, सबको इंसान को बंदरा बना को फेंकता, पूरा कौम को खत्म कर रहा होता। आज उससे ज्यादा गुना, उससे बढ़कर गुना इस उम्मत में हो रहे हैं, फिर भी कई को होना नहीं, अजाब कई को आना नहीं के। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ वो बीच में आ जाती है, अल्लाह की गजब को रोकती है, अल्लाह की गजब को दुआ रोक डालती है। उन्होंने अपनी बच्चों को दूर करके हमारे वास्ते सवाल उठाए, फिर हमें उनके वास्ते क्या करते हैं, दिन में कम से कम एक बार तो भी उनके ऊपर दर्द भेजते हैं, हमें कम से कम एक बार तो भी भेजता है, कौन तो भी आए, कौन तो भी दिन में एक बार तो भी कम से कम
उनके ऊपर दरूद भेजता सुनिए यहां कोई भी नहीं, लेकिन वह हमारे वास्ते अपने बच्चों को दूर करे, अपनी बेटी के बारे में दूर करे, हमारे वास्ते सवाल करे मेरे बाद मेरे उम्मत का क्या हाल होगा, जब जाके मैं बोलूंगा, जब फैसला करूंगा। मौत का फरिश्ता वाच खड़ को है, जिब्राइल अलैहिस्सलाम जाते अल्लाह का पैगाम लेकर आते, ए मेरे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हम आपकी उम्मत के साथ रहेंगे, आपकी उम्मत को तन्हा नहीं छोड़ेंगे, अकेले नहीं छोड़ेंगे। अब ये बात बोलने के बाद जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तसल्ली होते, अच्छा अल्लाह मेरी उम्मत के साथ रहता हूँ बोलता है, अल्लाह मेरी उम्मत को तन्हा अकेला नहीं छोड़ता हूँ बोल को बोलता है, तो बोल को बोलते। अब ऐसा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अम्मी आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा के सीने के ऊपर ऐसा रहते, सो सीने के ऊपर रखो, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सीने के ऊपर सर रखकर शहादत की उंगली उठा को ये बात फरमाते, मैं वो बनना चाहता हूं जिन पर तूने एहसान किया, उनमें से जो रसूल है, जो सच्चे हैं, जो शहीद हुए हैं और जो मुत्तकी है। मैं अल्लाह मुझे माफ कर दे, मुझ पर रहम फरमा और मुझे उन लोगों में शामिल कर दे जो आले तरीन ओहदों पर है। ये दुआ करते हैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये दुआ करते भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोलते, मौत का फरिश्ते तकदीर को पूरा करो। जिब्राइल अलैहिस्सलाम भी गमगीन होकर बोलते, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम्हारा कैसा है तो आज आखिरी दिन की इस दुनिया में, मेरा भी आखिरी दिन, आज के बाद मैं कभी इस दुनिया में वही के जरिए से नहीं आता, मैं कभी अभी नहीं आता मैं को बोलकर जिब्राइल अलैहिस्सलाम भी बोलते। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह को बोलते, या अल्लाह बुला ले तेरे कने को, ऐसा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया से चले जाते। जब हजरत अनस रजी अल्लाह तआला अन्हु बोलते हैं, अब तक का हमारी जिंदगी में सबसे बेहतर दिन कौन-सा को बोल को पूछे तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कब है तो मदीना मुनव्वरा में आए कि वो हमारा बेहतर दिन को बोल को बोलते हैं, और कब कौन-सा तुमना असल राजिनी से रोज कौन-सा को बोल को पूछे तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमना छोड़ को चल गए, सो रोज हमना राजी नहीं असले, ये रोज हमें नहीं देख सकते। बोल को अनस इब्न मालिक रजी अल्लाह तआला अन्हु रिवायत करते हैं, बोलते हैं हमना ये राजी नहीं को। पूरे जना को मालूम होता अभी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया से चले गए। उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु तलवार लेकर उड़ते, कौन है तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया से चले गए को बोल को बोलता कि उसका गर्दन उड़ा को फेंकते अब पीछे, कौन भी बोले जानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहा को भी गए नहीं, कैसा है तो मेराज को गए कि वैसा आज गए, आते फिर कौन हो आपको कुफारा से जंग करते उनो, कौन भी बोलना ना को हमारे नबी चल गए तो बोल को उमर रजी अल्लाह तआला नहीं बोलते ये बात, गर्दना उड़ा डालता हूं उन तो बोला कि तो मेरे नबी इस दुनिया से चले गए को बोल को बोलते। अबे हजरत अनस इब्ने मालिक रजी अल्लाह अन्हु का देखो, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहने रहते और पूरे सहाबा रोते रहते, इन्हें संभाल नहीं सकते अपने खुद को, बाहर आ जाते, मैं संभाल सकना नहीं अभी मैं रो के हो जाती हूँ बोल को, बाहर आते, बाहर आको जरा संभाल लेंगे खुद को बोल को कर ले तो बाहर एक ऊँटनी रहती आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। असल जानवर को क्या मालूम कौन जिंदा है कौन मर गया कि जानवर को क्या मालूम होता, वो जानवर भी मोटे मोटे आंसुआर होता है, वो ऊँटनी भी मोटे मोटे आंसुओं से रोती है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया से चले गए, ये देख को अनस इब्न मालिक रज़ियल्लाहु अन्हु हैरान हो जाते हैं, अंदर गए तो सहाबा रोते हैं, बाहर गए तो ये ऊँटनी भी रुला दिया इन लोगों को, मैं कैसे खुद को संभाल लेना, मैं मेरे नबी में से दूर रहने से गम को मैं कैसे बर्दाश्त कर लेना, तो वो अपने सहाबा में गमगीन हो जाते। हजरत अनस इब्न मालिक रज़ियल्लाहु अन्हु अब अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु आ जाते यही मौके पे,
आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर चादर डालकर रहता, चादर हटाते। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु चादर हटा को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की माथे के ऊपर बोसा लेकर बोलते, ए मेरे हबीब, तुम्हारे ऊपर मेरे माँ बाप कुर्बान हो, तुम्हें अगर हम ना ये हुक्म नहीं देते, छिड़ाना, छींकना, छिड़ाना, फाड़ लेना, पुकार लेना, ये तुम्हें नहीं करोगे बोल को नहीं बोलना है, तो आज पूरी दुनिया को बताते हमें गम पे तो कैसा रहता करने का, हमारी आंखों से आंसू खत्म हो जाको, खून के आंसू शुरू हो जाते, वैसा बताते सो अपने कपड़े फाड़ को। लेकिन तुम्हें ऐसा छींकना, छिड़ाना, करेजानी को बोल को बोले होने से हमें सबर करते हैं वो बोल को अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बोलते। अब इसके बाद अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु बाहर आकर देखते, पूरे सहाबा का हालत गमगीन, सब भी रोते रहते। हरे जनोबी उमर रज़ी अल्लाह अन्हु को बोलते, उमर शांत हो जाओ, तुम्हें अमन से रहो, शांति से रहो, तुम्हें कहीं तो तुम्हें गुस्से से बोलते हुए सर उड़ा दो, तुम घर में उड़ा दो, तुम वो बोल दो, तुम्हें गच्चुप रहो, जरा तुम्हें अमन से रहो, शांति से रहो बोलते। लेकिन उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, नहीं मैं रहता हूँ शांति से, मैं साथ रहता हूँ तो बोल को बोलते। जब अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु शहादत देखो, मैं गवाही देता हूं कि अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं, और मैं गवाही देता हूं कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के बंदे और उसके रसूल है को बोल को ये शहादत दे को खुतबा देते, मेंबर के ऊपर चढ़ को खुतबा देते अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। वो टेम्पो, वो खुतबा के बारे में, वो खुतबा के वो अल्फाज को हमें सुनने से, सुनना है ना, सुनना चांदी, वो सोने से, सुनने से लिखे तो भी कीमत ज्यादा, वो अल्फाज का वो कीमत तक पहुंच सकते नहीं, हमें लगा सुनने से लिखे तो भी वो अल्फाज को, वो बातों को लिखे तो भी कमी से वो कीमत है। वो वक्त क्या बोलेगा कहते तो अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मेंबर के ऊपर चढ़ को शहादत देने के बाद, ये लोगों सुनो, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पूजा करने वाले सुनो, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मौत आ गई, उन्होंने इस दुनिया से जा चुके हैं, जान लो अल्लाह की इबादत करने वाले, अल्लाह की पूजा करने वाले, जान लो उनका अल्लाह मौत से पाक है, उसका अल्लाह मौत से पाक है, वो हमेशा हमेशा रहने वाला को बोल को अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बोलते। ये बोलने के बाद सूरे आली इमरान की 140 पर 4 की आयत पढ़ते अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। वो क्या हो 40 पर 4 की आयत क्या हो कहते तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जंग उहद के टेम्पो या खतराओं होकर दांत मुबारक शहीद होकर बेहोश होकर गिर जाते, वो मौके पर सहाबा गमगीन हो जाते, एक फेक न्यूज से गलत खबर फैलता आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इंतकाल हो गए बोल को, वो टाइम को अल्लाह वो आयत उतारता, ये आयत है सूरह आली इमरान की 140 पर 4 की आयत, ये आयत वो उस मौके पे पढ़ते हैं। अब ये आयत क्या होते तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसके सिवा कुछ नहीं है कि बस एक रसूल है, उनसे पहले और रसूल भी गुजर चुके हैं, फिर क्या अगर वो मर गए या कत्ल कर दिया जाए तो तुम लोग उल्टे पांव फिर जाओगे? याद रखो जो उल्टा फिरेगा वो अल्लाह का कुछ नुकसान ना करेगा, अलबत्ता जो अल्लाह के शुक्रगुजार बंदे बनकर रहेंगे उन्हें वो उसकी जजा देगा। कहे तो कौन है तो अल्लाह की शुक्रिया अदा कर को अल्लाह के तरफ रहते की वो लगा कर देना है, सब बदला अल्लाह दे डालता वो बोल को। अब ये सुनने के बाद हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु शांत हो जाते, अमन हो जाते, एक ही दमे गुड़िया के ऊपर गिर जाते। ये सारी जिंदगी कितने बार सुने उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु ये आयत सूरह आली इमरान की 140 पर 4 आयत जिंदगी में कितने बार उन्होंने पढ़े सुने कितने बार, लेकिन ये मौके पर अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु खुतबा में बोलते स्टम्पो ये आयत सुने स्टम्पो उन्हें बोलते हैं कि उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु खुद बोलते हैं कि कितने बार सुनूं तो भी मैं ये आयत में बीच पहले बार सुनता हूं, कैनात है मेरी हालत को बोल को बोलते हैं उमर रजी अल्लाह तआला। जब उन्हें शांत हो जाते उसको आस्ते क्या की अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज्यादा इज्जत देते सो। अब उतने सहाबा पूरे गमगीन हो को
रोते हैं तो वो मौके को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पोजीशन में रखो, लोगों को खुतबा देखो, वो लगा को जमा करे से। अब एक खुतबा हो जाता। अब एक खुतबा हो जाने के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कैसा है तो वो उनका मिशन लेकर आए कि वो मिशन के बारे में ये लोग चलाते अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। अब एक खुतबा हो जाने के बाद बिलाल को पूछते, हजरत बिलाल रजी अल्लाह ताला अन्हु, अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, बिलाल कहाँ है? बिलाल दिखना नहीं तो, बिलाल कहाँ को चल गया? वह सहाबा बोलते हमें छे ना को बाहर भिजा डाले, बाहर मस्जिद के तरफ गली में भेंट कौन है उन्हों हमें भिजाए उना को कई को भिजाए, पूरे सहाबा या है इस्लाम उन्हों भी यार हनाना बिलाल भी उना को कई को भिजाए को बोल को पूछते। जब उन्होंने बोलते सहाबा क्या को बोलते गए तो सहाबा उन्हों रो 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 को बेहोश हो जाको गिर जाते हुए दिन सारी उन्हों को ऐसा हमें देख सकना नहीं, उसका से उन्होंने हमें बाहर भिजा डाले, तुम यहाँ रहे तो अभी तुम्हारा जान चली जाता, तुम्हें तुम्हारा जान कुर्बान कर डालते, तो बोल को हमें चुना को बाहर भेजा। अच्छा वो बोल अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मस्जिद के गली में जाको देखते उन्होंने कैसा रहते गए तो बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ऐसा पोजीशन में रहते उन्होंने आपको पीछे से हाथ डालते अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला उठ कर देखते, देखो एक एकदम गले लगाते बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, लगा ले को घट्टू छीक को छिलना को रोते रहते दोनों अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु भी बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से बोलते अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, रोना नको, ए बिलाल रोना नको, संभालो खुद को संभालो, खुद को संभालो वो बोलते। बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बोलते तुमने याद है क्या, तुम्हें मुझे गुलाम से आजादी दिलाई ना, वो टाइम पर मैं तुम्हें क्या बोलूं कि याद है क्या, मैं बोलूं कि मैं पानी पीता नहीं जब तक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरा नहीं देखता, उनके हाथ के ऊपर इस्लाम नहीं कबूल करता, उनके हाथ से मैं पानी पीता हूँ बोल को बोलूं तुम्हें याद है क्या। आज आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे यतीम कर को चले गए को बोल बोलते, जब अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला बोलते तुमने एक जना गुजरी पूरी उम्मत को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यतीम कर को चले गए इस दुनिया से, तो बोल को बोलते बोल को अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला बिलाल रज़ी अल्लाह ताला से बोलते ए बिलाल जोहर का वक्त हो गया, चलो अजान दियो, तुम्हें मुअज्जिन ना अजा दियो, तुम्हें जरा तुम्हें मौजन ना तुम्हें आंख अजा दियो। बिलाल रज़ी अल्लाह ताला बोलते हैं क्या बात करते हैं अबू बकर, मैं अजान नहीं दे सकता, कब भी मैं अजा देते स्टम्पो अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह को बोलते स्टम्पो, हर एक बार भी वो बात करें आज स्टम्पो को मैं दिखूं तो मेरे नबी का चेहरा को देखता हूं, नहीं करता तो मेरे नबी को रूम को कमरे को देखता हूं, मैं तसल्ली पढ़ता हूं, आज भी मेरे नबी का जनाजा मुबारक देखो मैं संभाल सकता हूं क्या, मेरे से होता नहीं, मैं अजान नहीं दे सकता, मुझे छोड़ वाले तुम्हें को बोलते। अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु बोलते नहीं 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 क्या भी हो जाओ अजान देना चाहिए, नमाज पढ़ना चाहिए, क्या भी हो जाओ असल नमाज का टाइम होने नहीं देना, नमाज के टाइम के अंदर ही हमें अजान देकर नमाज पढ़ लेना। बोलते अबे वह आराम करते हैं ना हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तुम्हें को बोल को अपना अजान नहीं दियो तो मैं को अपना नमाज नहीं पढ़ाए तो हमारे दोने से उन्होंने नाराज हो जाते, उन्होंने तुम्हारी राजी फिरेगा बोल को चले जाते। जब बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बुलाते अबू बकर क्या बात है बोल को चले जाते हैं तुम्हें, मैं इना की खुशी के वास्ते क्या है तो भी करता हूं, मैं इन्हों नाराज होते करते तो कौन सा काम भी मैं करता हूं, तो बोल का अच्छा मैं अजान देता हूँ बोल को बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अजान देने के वास्ते। कब है तो अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह को बोल को बोलते कि 11 बार बेहोश हो जाओ को गिर जाते बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, 11 बार बेहोश होते फिर उठते, फिर अशहदु अन्ना मुहम्मदर को बोलते फिर बेहोश हो जाते, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जनाजा नहीं देख सकते। वैसा पूरा 11 बार हजरत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बेहोश हो जाते गिर जाते, फिर ऐसा 11 बार बेहोश होते गिरते उड़ते गिरते पूरा अजान को मुकम्मल करते। उसके बाद अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जोहर की नमाज पढ़ाते, जोहर की नमाज पढ़ा को वो नमाज को मुकम्मल करते। अब कब तो ये हो जाता कि नमाज पढ़ाना तो बहुत बड़ा मसला खड़ा हो जाता। अब एक खलीफा कौन, लीडर कौन है, लीडर कौन करने का एक ना मुहाजिरीना की एक जना को बोलते
और एक जना को बोलते अंसारा। फिर अभी क्या वक्त तो बिलाखिर पूरे सहाबा डिस्कस कर ले को अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को खड़ाते खलीफा के नाम। कई को वक्त तो हिजरत करते टेम्पो भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ है, अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु गार में अकेले है, टेम्पो भी साथ है अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु गार में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अकेले है, टेम्पो भी साथ है, अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हिजरत के टेम्पो भी अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु रहे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज को जाते टेम्पो अमीर के नादे अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को बना को जाते। फिलहाल कि पूरे सहाबा अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को खलीफा बनाते। अब ये बना को अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के ऊपर बैत होते रहते सहाबा। एक आगत के तो आपके जमाने में मदीने में लाइब्रेरी रहता, वो लाइब्रेरी के बाजू पीछे एक बगीचा रहता, वो बगीचा कने पूरे हुआ सो खलीफा बने सो उनके ऊपर बैठे हुए सो वो क्या को कहते सकीफा बनी सईदा को बोल को वो जगह वह ये पूरा हुआ सो। अब बाद में दूसरे रोज का शाम का वक्त है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिस्म को अली रजी अल्लाह तआला अन्हु धोते रहते, उसामा इब्न ज़ैद रजी अल्लाह तआला अन्हु भी शकरान करते सो गुला में पानी डालते, अब्बास रजी अल्लाह तआला अन्हु भी उनके दोनों बेटे भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बदन को पलटाते रहते, जिस्म को कब जरूरत पड़े तो जब पलटा देते रहते। अब कपड़ा निकालने के मामले में दो रिवायत है। अब एक रिवायत में आता है कि अल्लाह पूरे लोगों को नींद दे डालता, नींद दे डाल को सबको सुला डाल को गैब से आवाज देता, हमारे नबी को कपड़े निकाले जाने तुम्हें निकाले नहीं सरकार थे कपड़े के ऊपर गुस्ल देना को बोल को। और एक रिवायत में क्या है कहते तो अब ये लगा पूरे है ना, अब वहां पे पानी डालते सुनो, ये लगा पूरे मशवरा कर ले को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जिस्म मुबारक से हमें कपड़ा मुबारक नहीं निकाल सकते, हमें इजाजत नहीं है को बोल को खुद वो लगा बोलने को मशवरा कर ले को कपड़े के ऊपर नीचे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गुस्ल दिए को बोल को है। अब ऐसे दो रिवायत है। अब इसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कफन को यमन से लेकर सो 3 वाइट कपड़े कफने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वो यमन के लेकर से ये करते कफन लेते। अब अभी दफनाने का किधर को बोल को एक एक बोल लेते रहे स्टम्बो। अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु होने की बोलते, एक बार आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे से बोले पैगंबरा नबिया कहा है तो इंतकाल होते कि उनको वाच दफनाना, कई को तो कहते इख्तलाफ नहीं हुए सर का। अबे हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंतकाल हुए सो कहते तो अम्मी आयशा रजी अल्लाह तआला अन्हा के रूम में, अब वाह ये करना वाह चुना को दफनाना को बोल को वो समझते बोलते हैं। अभी अब बाद में जब अबू तलहा रजी अल्लाह तआला अन्हु आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का है तो इंतकाल हुए कि वाचे कब्र खोदते उनो। अबे अब इसके अबे गड़ा खोदना हो गया। अबे नबियों को जनाजे की नमाज नहीं रहती, आम इंसानों को हम ना रहती जनाजे की नमाज। कई को वक्त तो जनाजे नमाज के तो क्या मगफिरत की दुआ करना, नबियों को दुआ की जरूरत नहीं, वो लगा अल्लाह के पैगंबरा होने से, पैगंबरा जन्नत के वारिसा होते होने से वो लगा को जरूरत नहीं। लेकिन वो लगा को कैसा कहे तो अब हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कैसा कहे तो बारी बारी होने सहाबा अंदर का आते, अंदर का को 10 जनों एक बार आको आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पूरे अलग अलग इनफरादी पूरे जमात के साथ नहीं, अलग अलग होने सब भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दरूद सलाम भेजते। कई को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दर्जा बुलंद होने के वास्ते दुआ करते अल्लाह से, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दर्जात बुलंद करो वो बोल कर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर दरूद सलाम पढ़ते रहते सहाबा। ऐसा 10 जनों आते जाते, फिर को 10 जनों आते फिर को जाते, वैसा पूरा होता सो नबियों को जनाजे की नमाज नहीं होती होने से। अब वह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दफनाने कब्र में उतरते, कब्र में उतरने के बाद वह मुगीरा इब्न शुबा रजी अल्लाह तआला अन्हु बोल के एक सहाबी रहते, उन्होंने की उंगली के अंगूठी निकाल को कब्र में डाल को बोलते कि ये अली मेरे अंगूठी इसमें गिर गई, मैं ये ले लेना क्या को बोलो। पूरे सहाबा देखते रहते उंगली उना की अंगूठी गिर को रहती वह, तो सहाबा बोलते कि आ ले लो वो बोल को बोलते, इन्हों खाली वो भाना करे होता चे अंगूठी करने का। कब्र में उतरते, कब्र में उतर को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को घट्टू लपटले को जोरदार होने रोते रहते, जोरदार होने रोते रहते। बाहर है सो सहाबा भी ओ ज्यादा वो लगा भी रो डालते रहते। अब बाद में पूरे सहाबा उनको बाहर खाओ तुम्हें मेरे को सबको ऐसा ये करना ना को बोल को उनको बाहर खींचते, ये सब पूरा मुकम्मल हुआ था।